Hello students, good morning. Welcome to our social science class. And students, today we are going to start our lesson number 3, which is Indian Constitution. Okay? So, give proper attention in this lesson. See, first line, Haley, Priyansi and Sachin are watching the final match of World Cup of 2011 on TV. Okay? What they were doing? They are watching World Cup cricket match, okay, of 2011 on TV with their parents. An exciting match is going on between India and Sri Lanka, okay. Which team? India and Sri Lanka, okay. The match is going between India and Sri Lanka. And who will win the World Cup, India or Sri Lanka? Okay, सबके माइंड में ये था कि कौन जीतेगा, who will win. Sri Lanka had put up a challenging target for India. ओके उन्होंने क्या किया, श्रीलंका टीम ने एक अच्छा चैलेंजिंग टारगेट रखा इंडिया को टू अचीव. बट विद द फियरलेस बैटिंग ऑफ द इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी. ओके महेंद्र सिंह धोनी की जो बैटिंग थी वो बहुत सुपर थी, एकदम फियरलेस थी. सो उससे क्या हुआ, इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप. एवरीवन वाज rejoicing in victory. Okay, rejoicing means what? One type of occasions, one type of ceremony. Hallie said to her mother while watching TV, "Mummy, the previous match between England and India resulted in tie. What does that means?" देखो उसके माइंड में क्या आया, उसने उसकी मम्मी को पूछा कि मम्मी प्रीवियस मैच जो इंग्लैंड और इंडिया के बीच में थी उसका रिजल्ट क्या आया, इट रिजल्टेड इन अ टाई. तो टाई का मतलब क्या हुआ. सुनीता बेन सेड यानी कि उसके मम्मी ने क्या कहा, हेली, for a popular game like a cricket, the ICC has systematically formed rules. ओके देखो जैसे कि ये पॉपुलर गेम क्रिकेट है, उसमें आईसीसी क्या करते हैं, एक रूल्स रेगुलेशन जो है वो फॉर्म करते हैं. आईसीसी मीन्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीसी. आई मीन्स इंटरनेशनल, सी मीन्स क्रिकेट एंड सी मीन्स compilation. Okay, ICC International Cricket Council. Okay students, now see here ICC. ICC means International Cricket Council. A tie in a match means that both the teams has an equal score. टाई का मतलब क्या हुआ, दोनों जो टीम जो है उनके स्कोर कैसे है, both teams has equal score. Even the game like football, hockey, kabaddi, etc. have their own set rules. Okay, जैसे कि क्रिकेट है वैसे अलग जो गेम्स है जैसे फुटबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है, उसके भी खुद के रूल्स होते हैं. If a game has so many rules, then to run the administrations of the populous nations, we surely require well-framed rules. Right now, like a game, it has many rules. Same way, uh, to administrations of the population's nations surely required well-framed rules and regulations. Right now, so because of it, maintain harmony, disciplines, a systematic. See, a systematic compilation means collection of a set of rules to run the government of a country is known as the constitutions of the country. Okay, constitutions of the country क्या हुआ, एक सिस्टमेटिक रूल्स रेगुलेशंस का एक कलेक्शन है जिससे गवर्नमेंट क्या होती है, रन होती है. कॉन्स्टिट्यूशंस कैन बी रिटन और अनरिटन फॉर्म. ओके, किस टाइप के फॉर्म्स में होता है, या तो रिटर्न होता है या तो फिर अनरिटन. राइट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विथ अ प्रियम्बल. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किससे स्टार्ट होता है, प्रियम्बल से. सी नेक्स्ट टॉपिक, हाउ वॉज द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया फॉर्म. किस तरीके से बना. द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया in the statement, the constitutions of India is the statement of national goals and aims such as a democracy, socialism, secularism, national unity
एट्सेट्रा। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? इट इज़ द स्टेटमेंट। किसका स्टेटमेंट है? तो कुछ नेशनल गोल्स है, कुछ एम्स है, राइट। डेमोक्रेसी यानी कि लोकशाही, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मीन्स व्हाट? See, no discriminations against anybody in the name of religions and national unities. The Constitutions Assembly was established और उसके लिए क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूंट्स असेंबली जो है एस्टेब्लाइज किया गया। इट स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 9th December 1946। कब स्टार्ट हुआ? 9th December 1946। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज फॉर्म ऑफ प्रोमिनेंट यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट एंड wait a minute, prominent and distinguishes of scholars and leaders। ओके, वेरी knowledgeable scholars और leaders जो थे उनको सिलेक्ट किया। देयर पॉलिटिकल विजन्स एंड फोरसाइट्स, उनका जो पॉलिटिकल विजन जो था वेरी पावरफुल। एंड फोरसाइट, फोरसाइट मीन्स व्हाट? इट इज़ वन टाइप ऑफ एबिलिटी। ओके, एबिलिटी टू प्रेडिक्ट व्हाट अबाउट विल हैपन इन फ्यूचर्स, फ्यूचर्स में क्या हो सकता है उसके बारे में उनको नॉलेज हो उस टाइप के। was incorporated in the constitutions leaders like जवाहरलाल नेहरू। सी, कौन से लीडर्स थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह एट्सेट्रा प्रोवाइडेड देयर गाइडेंस। ओके, इन लोगों ने अपना गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड किया। फ्रैंक एंथोनी रिप्रेजेंट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। देखो, जो फ्रैंक एंथोनी जो थे उन्होंने क्या किया? रिप्रेजेंट द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एंड एच.बी. मोदी रिप्रेजेंट पारसी कम्युनिटी। The committee had various constitution scholars like Aladi Krishna Swami Iyer, Dr. B.R. Ambedkar, K.M. Munshi, etc. Okay, students. Now see, there were female members also. Okay, so like Sarojini Naidu's and Vijay Lakshmi Pandit. Okay, Dr. Rajendra Prasad was elected as the president of the Constituent Assembly. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो, उनको क्या किया? उनको जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है उनका क्या बनाया? प्रेसिडेंट्स। देर वर अ नंबर ऑफ सब कमिटी। ओके, बहुत सारी ऐसी सब कमिटी भी बनाई गई टू टेक केयर ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशंस। द ड्राफ्टिंग कमिटी, कौन सी कमिटी बनाई गई? ड्राफ्टिंग, विच वॉज हेडेड बाई, उनका जो हेड थे वो कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। गेव टू कॉन्स्टिट्यूशन इट्स फाइनल शेप, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या दिया? फाइनल शेप दिया। टोटल 166 मीटिंग, कितनी मीटिंग्स हुई थी? 166 हेल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन द टाइम पीरियड ऑफ, जो टाइम पीरियड था वो क्या था? 2 years 11 months and 18 days। ओके, On 26th November 1949, the committee passed the constitution। जो कमिटी जो थी उन्होंने क्या पास कर दिया? कॉन्स्टिट्यूशन, विच वॉज एनफोर्स ऑन 26th January 1950। और वो जो एनफोर्स हुआ, अप्लाई हुआ, कब हुआ? 26th January 1950 को। ओके स्टूडेंट्स, सी, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? व्हाट इफ़ देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशन? अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नो कंट्री कैन फंक्शंस विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट ना। कोई भी कंट्री जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बिना फंक्शन नहीं कर सकती। वाई? बिकॉज उसमें रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं उसके हिसाब से हमें बिहेव करना होता है, हमें वर्क करना पड़ता है। अ कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स मैनी ऑब्जेक्टिव, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट, वो क्या है? वन टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट विच फाइनली वीव द एथोस एंड आइडल्स ऑफ आवर कंट्री। एथोस मीन्स वॉट? द स्पिरिट ऑफ एनी कल्चर, एनी कम्युनिटी। ओके, एंड आइडल्स यानी कि आदर्स। इट टेल्स अबाउट द काइंड ऑफ गवर्नमेंट आवर कंट्री वुड हैव। ओके, वो क्या बताता है कि कोई भी पर्टिकुलर कंट्री है, सपोज कि यहाँ पे हमारे कंट्री की बात हो रही है, तो हमारे कंट्री में किस टाइप की गवर्नमेंट होगी उसके बारे में वो बताता है। हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म द ऑफ गवर्नमेंट वी इलेक्ट आवर लीडर्स। ओके, हम क्या करते हैं? जो लीडर्स जो है उसको इलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, so that they can the administrations on
our behalf, जो हमारे behalf में administration संभालते हैं. However, there are provisions in the constitutions check the misuse of power by the leaders. और constitution में एक ऐसी provision भी है. कौन सी प्रोविज़न कि जिसमें जो लीडर्स जो है वो जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, ऑन बिहाफ हमारे काम करते हैं, वो अपने पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहा है ना, उसके लिए भी एक प्रोविज़न रखा गया है. सी साइलेंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो फर्स्ट जो है वो क्या है, डेमोक्रेटिक रूल्स. इंडिया हैज़ एडॉप्टेड द डेमोक्रेटिक सिस्टम्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट ना, लोकशाही. जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड इन आवर कंट्री एवरी 5 years. एवरी 5 years क्या होता है, एक जनरल इलेक्शंस. सिटीजन्स अबाउट द एज ऑफ 18 आर एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट. देखो 18, अगर कोई सिटीजन्स की एज जो है वो 18 हो गई तो वो क्या हुआ, एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट, उसको अपना वोट डालने का अधिकार मिल जाता है. वी कैन नॉट इमेजिन डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन, राइट ना, इलेक्शन के बिना डेमोक्रेसी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. पीपल ऑल ओवर द कंट्री प्ले देयर रोल्स इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट. सी क्या होता है, पीपल ऑल ओवर द कंट्री प्ले देयर रोल्स इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट ना, इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है उनका. Any voters of the country can contest an elections irrespective of his her religions, caste, class और gender. ओके देखो इसका मतलब क्या हुआ, एनी वोटर ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री में कोई भी ऐसा वोटर यानी कि जो 18 अप है उसको इलेक्शन में खड़े रहने का जो है वो अधिकार है, बराबर. और उसमें फिर कोई भी रिलीजन है, कास्ट है, क्लास है, जेंडर्स है, वो देखा नहीं जाता है. द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रूल्स फॉर 5 years. कितने ईयर्स के लिए वो रहते हैं, इट रूल्स फॉर 5 years. Every citizen enjoy the freedom to follow religion of his her choice, as well as freedom of speech, expression and thought. Okay, in a democracy country we get some rights. Okay, so citizen enjoys some rights like it has freedom to follow any type of religion according to her his wish choice, right. And also got freedom of speech, freedom of expressions, freedom of thoughts. Okay, next topic is secularisms. Okay, so secularism means what, not discriminals against anybody in the name of religions. So see, a secular nations means that the government does not conform to the norms of any particular religions in its system of governance. Okay, governance में ऐसा कोई particular rules regulation कोई particular पर्सन के लिए, कम्युनिटी के लिए, रीजन के लिए वो रखेगा नहीं. ओके, सिटीजन्स आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेथ, सेक्ट और रिलीजन्स. जो सिटीजन्स हैं वहाँ के, वो फिर वो कोई भी रिलीजन्स के हो, ओके, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं रखा जाता है. ओके, कि उनका फेथ क्या है, सेक्ट क्या है, रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, राइट. सेक्ट का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल. ओके, पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर रिलीजन्स, राइट, ऐसे डिस्क्रिमिनेशंस रखे नहीं जाते हैं. एवरी सिटीजन्स एंजॉय द राइट टू फॉलो एंड प्रोपगेट द रिलीजन ऑफ हिज हर चॉइस. ओके, एवरी सिटीजन्स को क्या राइट है, इट राइट्स टू सिलेक्ट एनी टाइप एनी रिलीजन्स, ओके, अकॉर्डिंग his her wish, his her choice. Okay, and also get a right to follow and propagate the religions. Okay students, so here we stop our contents. So what is in your HW, you have to read these lessons very carefully. Okay, find hard words, okay, and write it in your notebook. Okay students, and read this lesson very carefully. Okay, thank you, have a nice day.